Hello guys and welcome to Manual Education. In this session we'll see a detailed paper solution of test paper 2021, the English section. So guys, if you're preparing for TestNet exam and targeting the test campuses, then you can contact us. We provide live as well as classroom coaching, ebooks, shortcut tricks. We also conduct your doubt sessions, provide you with recorded lectures. We also provide you with topic test, mock test, and with an ocean of over 10,000 plus questions, we prepare you comprehensively for the exam. Not just that, we also have a mentorship program wherein our mentors stay connected with you on WhatsApp group and help you solve your queries as and when they arise. So guys, what are you waiting for? Book your seat with us right now by calling us on 8828581455. And for classroom coaching, we have our centers at Dadar, Borivali, and Vasai. You can contact us on these numbers and visit our centers. For more information, you can log into our website. So, guys, I know that paper solutions are not really available in the market, and if at all you get the solutions, then too you don't get an idea how to solve the paper. So in this session I'm going to teach you how to approach what is a topper's mind, how does a topper approach the paper, and how to solve these questions within 20 to 30 seconds. So without any further delay, let's get started. The first question is about spot the error. So here if you find any error, तो आपको वो एरर बताना है, अदरवाइज नो एरर विल बी आंसर. सो इफ आई वर इन योर शूज आई वुड पुट ऑन अ हैप्पी फेस. ओके, तो यहाँ तक एक है एडवाइज्ड राकेश या फिर नो एरर. ठीक है, नाउ यहाँ पे गाइज देर इज़ एक्चुअली नो एरर. ये बहुत ही अच्छे से करेक्ट सेंटेंस है. इफ़ आई वर इन योर शूज़, आई वर आएगा, आई वॉज नहीं आएगा. If I were in your shoes, I would put on a happy face, advised Rakesh. This is a perfect question, so your answer is no error. Now this is a para jumble. आपको इन सब sentences को इस प्रकार arrange करना है so that they make sense and logical arrangement लगे. तो ये jumbled है. फिलहाल ये जिस आपको sequence में दिए है, that is not a proper sequence. So let us see. The first lead sentence has been given. तो ये है मेरा lead sentence. With its rich pungency and smell, garlic has been both extolled and vilified during its 4,000-year history. Okay, तो यही हमारा first sentence होने वाला है. Now we have to see कि इसके लिए connecting sentence हमें कौन सा correct लग रहा है. So the second sentence says, later the Greeks and Romans यूज इट फॉर डॉग बाइट्स एंड ब्लैडर इन्फेक्शंस. एंड यहाँ पे लेटर दिया है, मतलब पहले किसी और ने यूज़ किया रहेगा. सो ए तो स्टार्टिंग सेंटेंस हमारा नहीं हो सकता डायरेक्टली इसके बाद. ठीक है, तो द एंशियंट इजिप्शियंस, देखो पहले हम एंशियंट इजिप्शियंस ने कैसे यूज़ किया वो बताएंगे, उसके बाद हम ग्रीक एंड रोमन्स पे आएंगे. ठीक है, सो बी के बाद ही ए आएगा. सो जहाँ पे भी ए के पहले बी आया है, इट्स गोइंग टू बी रॉन्ग. As medicine for more than 20 different ailments including heart disease and tumor. Israeli slaves when fleeing the Egyptians for the promised land complained of not having garlic. Although it is sometimes referred to as the stinking rose and certainly its smell is off-putting. अभी देखो इट की बात चल रही है, तो हम यहाँ पे ऑब्वियसली गार्लिक की बात कर रहे हैं. Even with their garlic ice cream available in San Francisco, they even fed it to their slaves to give them more strength to build. अभी यहाँ पे देखो slaves की बात यहाँ पे हुई है, यहाँ पे हुई है, एंड slaves किसके थे, तो इजिप्शियंस के थे. सो ऑब्वियस सी बात है कि सबसे पहले बी आएगा, उसके बाद ये हम इजिप्शियन स्लेव्स की बात करने वाले हैं, राइट. एंड फिर सॉरी, दे फेड इट टू देयर स्लेव्स, मतलब इजिप्शियन लोगों ने उनके स्लेव्स को फीड किया. ओके, एंड ये जो स्लेव्स थे विच इज़ द इजराइली स्लेव्स, वो जब जा रहे थे तो उनको वो लैंड चाहिए था. सो ये बी ई सी जो है वो एक दूसरे के बाद आएगा, ई पहले नहीं आएगा. सो आंसर इज़ ए. सो यू अंडरस्टूड मैंने कैसे एलिमिनेशन टेक्निक से आंसर मिलाया. लेकिन अभी देखते हैं कि ए क्यों लॉजिकली करेक्ट है. सो with its rich pungency and smell, garlic has been both extolled and vilified during its 4,000-year history.
The ancient Egyptians used it as medicine for more than 20 different ailments, including heart diseases and tumor. They even fed it to their slaves to give them more strength to build the pyramids. The Israeli slaves, मतलब same slaves जिनकी हमने अभी भी बात की, when fleeing the Egyptians for the promised land, complained of not having garlic. उसके बाद लेटर, मतलब अभी ये इजिप्शियन वाला चैप्टर ख़त्म हो गया. इजिप्शियन लोग यूज़ करते थे, स्लेव्स को भी देते थे, फिर स्लेव्स जब जा रहे थे उनको भी वो गार्लिक चाहिए था. ये पूरा चैप्टर ख़त्म. नाउ वी मूव ऑन टू ग्रीक्स एंड रोमन्स. So later the Greeks and Romans used it for dog bites and bladder infections as well as cures for asthma and leprosy. उसके बाद लास्ट, although it is sometime referred to as stinking rose, मतलब हमारा garlic, and certainly its smell is off-putting to many, it still thrives today with even a garlic ice cream available in San Francisco. तो आपको समझा कैसे हमने यहाँ पे टाइम ट्रैवल किया. मतलब हमने यहाँ पे क्रोनोलॉजी जो है वो पूरी की पूरी जो है वो टाइम के हिसाब से ली कि सबसे पहले 4000 ईयर्स की हिस्ट्री, फिर हम गए इजिप्शियंस पे, फिर ये पूरा इजिप्शियन लोगों का ही चल रहा था, स्लेव्स कहाँ पे, ठीक है. उसके बाद हम गए ग्रीक एंड रोमन्स पे, ठीक है, उसके बाद क्योंकि लेटर, एंड फिर हम आ गए अवेलेबल टुडे, ठीक है, इस पे. तो हमने क्या किया, ये पूरा जो टाइम के हिसाब से मैंने यहाँ पे अरेंजमेंट की है. सो नॉट एवरी टाइम आपको टाइम के हिसाब से ही अरेंजमेंट मिलेगी, बट मेजॉरिटी टाइम्स आपको देखना है कि व्हाट इज़ द लिंक, जैसे हमने अभी इजिप्शियंस और स्लेव्स के लिंक बनाए. ओके, सो आई होप दिस वाज क्लियर. द नेक्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक to complete the sentence. Despite being twins, the boys looked so different dash one another. So यहाँ पे क्या आएगा, different from one another आएगा. I know the first thing that comes to our mind is to आना चाहिए, लेकिन we look similar to someone. देखो हाँ, ये समझिए, हम ना similar to दिखते हैं लेकिन हम different from दिखते हैं. Okay, so different from one another. Which words from the given option is most opposite in meaning? Impet. Impet का opposite क्या आएगा यहाँ पे, तो feather, speed, slide and facilitate ये दिया. तो यहाँ पे facilitate आ जाएगा क्योंकि impede का meaning होता है कुछ रोकना. Impede in itself means obstruction. तो obstruction के उल्टा क्या है, facilitate, मतलब कुछ help करना, allow करना. Next. He was quick dash arithmetic but weak dash languages. He was quick at arithmetic but weak in languages आएगा यहाँ पे क्योंकि quick के साथ at आता है. I am quick at something, I am quick at solving sums, I am quick at picking up things, I am quick at learning languages. ठीक है, so quick के साथ हमेशा preposition at आएगा. लेकिन हम weak किसी चीज़ में रहते हैं, so weak in आएगा, weak in languages. सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट डैट यू अंडरस्टैंड कि कौन सी चीज़ों के साथ क्या आता है. जैसे कि मैंने पहले भी ये बोला था कि डिस्पेंस के साथ क्या आता है गाइज, डिस्पेंस के साथ आता है विथ. आई एम वेल एक्वेंटेड विथ यू. ओके, आई एम familiar with something or familiar to something. So these are phrases. तो आपको ना ये phrases समझने हैं, ठीक है. तो ये थोड़ा आपको अच्छे से समझ लेना है. सो हमारे बाकी के भी जो हमने पहले वीडियोस अपलोड किए हैं एग्ज़ाम एनालिसिस के, वो देखिए तो आपको समझ में आएगा कि अलग अलग क्वेश्चंस में क्या प्रपोजिशंस वगैरह आते हैं. द मोर वीडियोज़ यू सी, द मोर वर्ड्स यू कम अक्रॉस, द मोर पेयर्स यू लर्न. सो आई लिंक ऑल द वीडियोज़ इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, सो मेक श्योर कि आप वो देख लेना. ओके, अब स्पॉट द एरर. Let us not live here furthermore, as it is dangerous to do so, she said. तो यहाँ पे एरर क्या है, यहाँ पे एरर है your furthermore में ही, क्योंकि furthermore का मतलब ही क्या होता है, in addition to. furthermore मतलब furthermore, ठीक है. अगर मैं बोलती हूँ कि ये वीडियोस देखना, furthermore it is important कि आप प्रैक्टिस भी करो, in addition it is important कि आप प्रैक्टिस भी करो, ठीक है. सो यहाँ पे लेट अस नॉट लिव हियर फर्दरमोर नहीं आएगा, इन एडिशन. यहाँ पे एक्चुअल वर्ड क्या चाहिए था, एनी मोर. अगर डेंजरस है तो यहाँ पे और हमें नहीं रुकना चाहिए. सो लेट अस नॉट लिव हियर एनी मोर. नेक्स्ट,
Every adult and child knows that success is as much about belief and hard work as about skill. तो यहाँ पे कोई एरर नहीं लग रहा है, दिस इज परफेक्ट. एवरी एडल्ट एंड चाइल्ड नोज कि सक्सेस इज एज मच एज अबाउट बिलीफ एंड हार्ड वर्क एज अबाउट स्किल. परफेक्ट वर्ड, परफेक्ट है. एज वेल एज का एकदम सही उपयोग. Next, the dash of modern technology do not compensate for the dash of privacy invasion it harbors. So, अभी यहाँ पे बोल रहे डो नॉट कंपेंसेट, ठीक है, फॉर द प्राइवेसी इन्वेजन. तो नेगेटिव चीज़ है, तो कुछ चीज़ है पॉजिटिव, लेकिन वो भले ही पॉजिटिव है ना, वो कंपेंसेट नहीं कर रही है इस नेगेटिव चीज़ के लिए. तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव लाऊंगी चीज़, ठीक है. तो अगर मुझे पॉजिटिव चीज़ लानी है तो कॉन्स तो नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्स अपने आप में ही नेगेटिव हो जाता है, तो गलत, ठीक है. ट्रिब्यूलेशंस भी नहीं आएगा, ठीक है, तो ये गलत. अभी मार्वल्स एंड वंडर्स आ सकता है. सो द वंडर्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी और द मार्वल्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ओके, डू नॉट कंपेंसेट फॉर द, अभी इन दो ऑप्शंस में से देखते हैं, फॉर द फैक्ट ऑफ प्राइवेसी इन्वेजन इट हार्बर्स और फॉर द ट्रायल्स ऑफ. देखो ट्रायल नहीं हो रहा है, एक्चुअल में प्राइवेसी इन्वेजन हो रहा है. सो द करेक्ट आंसर इज बी. जब ऐसे दो फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, इट इज़ ऑलवेज बेटर दैट यू यूज़ एलिमिनेशन टेक्निक, क्योंकि एक ब्लैंक आपको दो ऑप्शंस निकालने में मदद करेगी एंड दूसरी ब्लैंक आपको और एक ऑप्शन निकालने में. सो इट्स गोइंग टू बी प्रीटी यूजफुल. नाउ देयर इज डैश ऑन अर्थ, आई वुड डैश हियर. देयर इज एनीवेयर ऑन अर्थ, नोवेयर ऑन अर्थ, एनीवेयर ऑन अर्थ, नोवेयर ऑन अर्थ. ओके, सो देखते हैं. देयर इज एनीवेयर ऑन अर्थ, आई वुड बी हियर, ये गलत है. देर इज नोवेयर ऑन अर्थ, आई वुड रैदर बी दैन यर, दिस लुक्स परफेक्ट. सो नोवेयर आई वुड वॉन्ट टू बी यर, तो ये वॉन्ट टू बी दैन चाहिए था ना. सो यहाँ पे यर के पहले हमेशा दैन आएगा. सो दैट इज वाई बी इज आर अप्रोप्रिएट आंसर ओवर यर. सो ये जो हमने अभी अभी ट्रिक की कि मैंने सब ऑप्शंस उसमें यूज़ करके देख लिए. तो अगर आपको कुछ छोटू फिल इन द ब्लैंक आता है जिसमें आप क्विकली सब ऑप्शंस डाल के देख सकते हैं, सो यू कैन ऑल्सो यूज़ द ट्रिक ऑफ व्हाट साउंड्स राइट टू मी. राइट नाउ दिस बी ऑप्शन साउंड्स राइट टू मी, क्योंकि वो परफेक्ट फिट जा रहा है. सो दैट इज़ वाई मैंने वो उठा लिया, ठीक है. सो दिस इज़ ऑल्सो, ये भी बच्चे अप्रोच हमेशा अडॉप्ट करते हैं कि जो सही लग रहा है सब ऑप्शंस यूज़ करके उसे मार्क करना है. चलिए, अगेन वी हैव अ पैराजम्बल, तो लेट्स रीड इट. द एक्सप्रेशन यू आर वॉट यू ईट इज़ बिकमिंग क्लियरर विद एवरी न्यूट्रिशनल स्टडी, ये हमारा लीड सेंटेंस है, ठीक है. तो इस सेंटेंस को हमें हटाना नहीं है, हमें बस ये देखना है कि इस सेंटेंस के बाद कौन सा सेंटेंस आएगा. सो इन ब्रीफ, most longevity studies indicate that diet rich in omega and avoiding sugars and most carbohydrates will add years to your lives. Okay, फिर next, however the problem for most of us, तो यहाँ पे diet rich, problem for most of us in eating a healthy diet is that food is cultural and we tend to eat foods that our culture has instilled in us as good, whether or not they are consistent with the studies. Physically athletes are learning to avoid carbohydrates, even mentally. देखिए हमें मिल गया यहाँ पे एक मैंडेटरी पेयर. ये हम हमेशा लेक्चर्स में बताते हैं, मैंडेटरी पेयर्स वो होते हैं जो हमेशा एक दूसरे के बाद आएंगे. यहाँ पे मैं अगर एथलीट्स की बात कर रही हूँ तो मैंने फिजिकली उनकी बात कर ली, फिर इवन एक तो बता रहा है कि ऑलरेडी मैंने किसी चीज़ पे बात की है. इवन इज़ अ ट्रांजिटरी वर्ड, और वो बता रहा है कि फिजिकली के बाद इवन मेंटली आएगा. सो सी के बाद हमेशा डी आएगा. तो मुझे देखने दो सी के बाद डी कहाँ पे आया है, बस इस एक ही ऑप्शन में. सो आई फील दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन. फिर भी देख लेते हैं. न्यूट्रिशनिस्ट सजेस्ट डेफिशिएंसीज इन B12, thiamine, zinc and niacin will result in lower mental performance. ओके, नाउ यहाँ पे आपको ये भी दिख गया कि यहाँ पे मेंटल परफॉर्मेंस की बात हुई एंड इमीडिएटली बाद में मैंने वापस यहाँ पे मेंटल परफॉर्मेंस की बात की, तो डी के बाद ही ई आएगा. देखिए, है कि नहीं. नाउ लेट अस सी हाउ फर्स्ट मेक्स द राइट ऑप्शन. The expression you are what you eat is becoming clearer with every nutritional study.
हावेवर द प्रॉब्लम फॉर मोस्ट ऑफ अस इज़ दैट हम हमारा कल्चर हमें जो चीज़ बताता है वही खाते हैं, हम चेक नहीं करते कि वो करेक्ट है या नहीं। फिर हमने एथलीट्स की बात की, फिज़िकली, मेंटली एक्सेट्रा, एंड फाइनली मैं कंक्लूड कर रही हूँ इन ब्रीफ। देखिए यहाँ पे भी आपको समझ में आता है, हम यूजुअली सब बातें करने के बाद बोलते हैं ना। सो बेसिकली मुझे क्या कहना था, या ऐसे हम बात करते हैं, राइट। सो इन ब्रीफ मोस्ट लॉन्जिटिविटी स्टडीज इंडिकेट दैट अ डाइट रिच इन ब्ला 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 इज़ गुड फॉर आवर लाइफ। सो ए इज़ अ परफेक्ट आंसर। यहाँ पे मैंने मैंडेटरी पेयर्स वाली ट्रिक अपनाई। नेक्स्ट, द पैंडेमिक हैज टॉट अस टू बी मोर डैश विथ हाइजीन। तो हमें यहाँ पे क्या होना है, हमें मोर सर्कमस्पेक्ट होना है विथ हाइजीन। इसका मतलब क्या है, सर्कमस्पेक्ट मतलब अवेयर होना है, एंड बट नॉट विलिंग टू टेक रिस्क। मतलब मुझे किसी चीज़ के बारे में अवेयर रहना है और मुझे रिस्क नहीं लेनी है बिना मतलब। जैसे कि अभी कोविड वापस अभी वेव वगैरह अगर आएगी तो आई हैव टू बी वेरी विजिलेंट, राइट। सो सस्पिशियस नहीं आएगा, हम हेल्थ हाइजीन के बारे में सस्पिशियस नहीं हो सकते। हमें पता है हाइजीन अच्छी है, बस हमें अवेयर रह के उसमें रिस्क नहीं लेना है। ओके, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन नॉट बी डेफिनेटली इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज गिवन बिलो। ओके, the group was wary of taking the course. The expectations set by the professor were so high that they seemed nearly impossible to achieve. There were many readings given on the assignment, so you have to understand this passage, guys. अच्छे से सुनना, मैं वापस पढ़ रही हूँ. The group was wary of taking the course. The expectations set by the professors were so high that they seemed nearly impossible to achieve. There were many readings given, and the assignment seemed to focus on anything but readings. It was almost as if the readings were a take-off point only. The group was worried that their cumulative grade point would suffer as a result of taking this course. Now, इससे हम क्या infer नहीं कर सकते, ये पूछा है. Okay, so the students may not take up the course. देखो ये तो है, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि उससे कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा, ठीक है। सो ग्रेड पॉइंट जो है वो उसको अफेक्ट ही नहीं करेगा, सो ये हो सकता है। द रीडिंग्स वर ओनली गाइड पोस्ट फॉर द असाइनमेंट। ये तो बहुत ही एविडेंटली दिया था ना कि रीडिंग्स बस ऐसे ही हेल्प कर रहे थे। प्रोफेसर वॉज स्ट्रिक्ट, नहीं ये नहीं हम बोल सकते। देखो प्रोफेसर ने हाई एक्सपेक्टेशंस रखे, पर बाद में प्रोफेसर ने लोगों को पनिश किया क्या, बाद में प्रोफेसर ने लोगों के मार्क्स काटे क्या, ये हमें पता नहीं है ना। कभी कभार टीचर्स आपको हाई एक्सपेक्टेशंस रखने के लिए अगर बोलते हैं तो वो मोटिवेटिंग टीचर्स भी हो सकते हैं, नॉट नेसेसरी दैट दे आर स्ट्रिक्ट। ओके, सो हम एक उनके एट्रीब्यूट से ऐसे 2-3 अजम्पशंस नहीं निकाल सकते। सो यहाँ पे दिस इज़ रॉन्ग, सो दिस इज़ माई आंसर। To meet the goals of Atmanirbhar Bharat, the universities have started dash study program. Entrepreneurship, this is a spell check, ठीक है। एक तो इसे एंटरप्रेन्योर भी नहीं, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, तो प्रोनाउंसिएशंस थोड़े फनी है इंग्लिश के, ठीक है। वो लिखते जलेपिनो है एंड बोलते हलेपिनो है, सो दैट इज़ हाउ इट इज़। नाउ यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप में इट इज़ एंट्रे, ठीक है। तो एंट्रे तो हर जगह है। ट्रॉनर, सो PRENE, सो ये गलत, PRENE PRENU नहीं। ओके, सो C इज आवर आंसर, एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट, the number of people who dash interested in the play dash outnumbered by those who already bought the tickets to watch it. So the number of people who are not interested in the play, ठीक है। एक तो number of people है, मतलब प्लूरल है, सो इज़ नॉट गलत, इज़ गलत, आर नॉट या आर आएगा। इंटरेस्टेड इन द प्ले डैश आउट नंबर्ड, अभी ना देखिए यहाँ पे ये वाला ब्लैंक पीपल के लिए, लेकिन ये वाला जो ब्लैंक है ना, आई जस्ट यूज अनदर पेन, ये वाला जो ब्लैंक है ना गाइज, इट इज़ फॉर द नंबर। सो जितने लोगों को इंटरेस्ट था या नहीं था, उसको नंबर ने आउट नंबर किया था बाय दोज हु ऑलरेडी ब्रॉट द टिकट, ठीक है। सो नंबर सिंगुलर आएगा, प्लूरल सिंगुलर आएगा, दैट इज़ वाई जस्ट प्लूरल एंड सिंगुलर के बेसिस पे मैंने कट करके आंसर तक मैं पहुंच गई। सो द नंबर ऑफ पीपल हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन द प्ले इज आउट नंबर्ड बाय दोज हु ऑलरेडी ब्रॉट द टिकट्स टू वॉच इट।
I hope you understand this. It is difficult to feel dash when one is at dash, remorseful when one is at top of the world perfect, enchanted when one is at a birthday celebration, कोई संबंध ही नहीं है ना, favored by fortune, loss of words नहीं, indignant, mercy of ones. The correct answer is this. जब आप एकदम बहुत अच्छा फील कर रहे हो तो आप बुरा फील नहीं कर सकते. Next, select the synonym for the word underlined. He was always looking to save money. After all, one needs to be frugal if one wants to build a business. अब यहाँ पे देखिए, ये ना फ्रूगल आपको ऐसे ही वर्ड देके पूछा नहीं है, इन्होंने आपको कॉन्टेक्स्ट भी दिया है, राइट. सो आपको पैसे बचाने चाहिए ताकि आपको सक्सेसफुल बिजनेस. तो यहाँ पे क्या आएगा, आंसर विल बी, यहाँ पे थ्रिफ्टी आंसर होगा. थ्रिफ्टी मतलब क्या होता है कि जब कोई किसी के रिसोर्सेज जो है ना वो संभल कर यूज़ करता है. नेक्स्ट, which word from the given option is more similar in meaning to the word in capital when used as a verb? mean मतलब verb करके देखो, अगर मैं बोलूँगी she is a very mean person तो मैं उसको as a person adjective दे रही हूँ, लेकिन verb करके नहीं यूज़ कर रही हूँ. when I use it as verb I will say what do you mean, मतलब यहाँ पे मैं verb बोल रही हूँ. it means signify. what are you trying to signify? what do you mean? Next, films are amazing medium of communicating cultures and history. now यहाँ पे of communicating जो है, ठीक है, communicating cultures यहाँ पे जो दिया गया है it should be for communicating cultures, ठीक है, क्योंकि मुझे culture और history communicate करनी है ना. so it's not a medium of communicating culture, it's a medium for communicating culture. so this is wrong. next, अगेन एंटोनिम देना है. आपको हमेशा क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ने हैं. एंटोनिम देना है. दे डिड नॉट नो विच डायरेक्शन टू गो इन, दे वर एट एन इम्पास. अभी देखो उनको नहीं पता था कहाँ पे जाना था, तो मतलब वो एक डेडलॉक में आ चुके थे. डेडलॉक उसका मीनिंग होगा, बट हमें चाहिए एंटोनिम. सो एंटोनिम क्या होगा, ब्रेक थ्रू, ठीक है, मतलब जहाँ से आपको फटाक से समझता है कि अभी नेक्स्ट क्या करना है. फिर based on the information which of the given options is most definitely true, पक्का true. okay, there are two containers in a room. one, दो containers है, one is a box and one is a can. तो एक है box और एक है can. okay, one is small and is green. so जो small है वो green भी है. one of them has toys in it. the can is big. अगर कैन बिग है मतलब बॉक्स जो है वो स्मॉल है और ग्रीन है. द कंटेनर दैट इज कम्प्लीटली पर्पल, चलो इसका भी मुझे कलर पता चल गया, पर्पल, हैज़ टॉयज इन इट. हैज़ टॉयज, समझ में आ गया, ठीक है, इजी था. द बॉक्स इज बिग, क्या बॉक्स बिग है, नहीं बॉक्स स्मॉल है. कैन इज ग्रीन, नहीं कैन पर्पल है. बॉक्स डज नॉट हैव टॉयज इन इट. ओके, अभी यहाँ पे आके हमारा इंग्लिश कम्स इनटू पिक्चर. देखो फर्स्ट एंड सेकंड रॉन्ग है, ये तो आपको डेफिनेटली पता है, ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको पूछूं कि सी और डी, एंड अगर और एक ऑप्शन होता कि ई वाला जो बोलता बोथ सी एंड डी, ठीक है, तो यहाँ पे ना डेफिनेटली ट्रू है दैट द कैन हैज़ टॉयज इन इट. ओके, क्योंकि बॉक्स डज नॉट हैव टॉयज ऐसा नहीं है. उन्होंने क्या बोला, वन ऑफ देम हैज़ टॉयज इन इट. इसका मतलब ऐसा है क्या कि ओनली वन ऑफ देम हैज़ अ टॉय इन इट. यहाँ पे हमारा इंग्लिश का खेल आता है. अगर मैं बोलती कि सिर्फ एक में टॉयज है, मतलब फिर ये होता कि बॉक्स में टॉयज नहीं है, लेकिन मैंने बोला दोनों में से एक में टॉयज है, मतलब दूसरे में हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते. आपको समझ में आ रहा है इंग्लिश का खेल यहाँ पे. दैट्स वाई द आंसर विल बी द कैन हैज़ टॉयज इन इट. ओके, ओहो, आगे अपने पास एक पैसेज, चलिए क्विकली पढ़ लेते हैं. The target group of major OTT platforms should ideally be millennials or the age group of 18 to 35 years. This number, however, is largely due to Digital India campaign increasing the number of smartphone and data users, and is also an effect of globalization which has led the population to be more aware. With major data service providers like Jio bringing down data costs, there has been a significant shift in viewership in India,
with number of Indian users growing at the rate of 4 to 8%. This essentially means that there is a massive potential for rural India to subscribe to such platforms on a large scale, making rural India also a target group for platforms. In 2017, OTT platforms in India generated INR 2019 crore. This is expected to increase to INR 5,595 crores by 2022. Digital streaming platforms overtook film entertainment to rank the third largest Indian media and entertainment sector in 2019, according to the latest EYFICCI Indian Media and Entertainment Report. When most OTT platforms made an entry in the Indian market, they mainly had catch-up shows. However, with the entry of global players like Netflix and Amazon Prime Video, users are offered a plethora of original content. Hotstar is currently the most popular OTT platform in India, according to data from a mobile advertising and internet service provider. Although in my opinion, Netflix will be the market leader in the medium term among millennials, as it is a giant global player and it entered India powerful mainly due to the youth inspired by Western culture. So this was the passage. थोड़ा relatable था, हमें पता थी ये सब चीज़ें. So देखते हैं questions. Which of the given options best represents the author's purpose in writing the passage? Author passage क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे? To describe the potential of OTT platform, perfect. To comment on the importance, highlight the presence तो पता है, argue for the advantage नहीं, वो potential बोल रहे थे ना कि आगे क्या होगा. Which of the given options is an assumption made by the author? Original content attracts users. Yes, क्योंकि उन्होंने ये बताया कि Netflix जो है वो बहुत ही ओरिजिनल कंटेंट दे रहा है, तो लॉन्ग टर्म में वो चलेगा. ऑल्सो ये लोग सब यहाँ पे देखिए, ठीक है. एंट्री ऑफ ग्लोबल प्लेयर्स, यूजर्स आर ऑफर्ड अ प्लेथोरा ऑफ ओरिजिनल कंटेंट. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ये दे दिया कि लोगों को ओरिजिनल कंटेंट पसंद है. डेटा कॉस्ट हैज केप्ट यूजर्स अवे टिल जियो एंटर द मार्केट. डिजिटल इंडिया कैंपेन, ठीक है, ये अजम्पशंस नहीं है, ये फैक्ट है. देखिए ये है, पर ये फैक्ट है. ये ऑथर अज्यूम कर रहा है, उनको लग रहा है कि ओरिजिनल कंटेंट होगा तो लोगों को पसंद आता है. Digital India campaign led to an increase in sale of digital devices. Again, this is a fact. Mobile interface is essential to users. Fact. This is an only assumption. Assumption मतलब जो fact नहीं है लेकिन अपने को लगता है कि ऐसा होगा. Which of the following can be inferred based on the passage? Rural areas are entirely untapped by the OTT platform. ये तो है, लेकिन ये बहुत छोटी सी बात दी थी. डिजिटल स्ट्रीमिंग एंड OTT रिफर टू द सेम टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म. हाँ, क्योंकि ये बार बार वही बोल रहे हैं ना. देखो यहाँ पे उन्होंने बार बार बोला है कि सिनोनिमसली यूज़ किया है पूरे पैसेज में. कहीं पे बोल रहा है OTT, कहीं पे बोल रहा है डिजिटल स्ट्रीमिंग. सो दिस विल बी आन आंसर. OTT प्लेटफॉर्म्स विल मोर देन डबल देयर रेवेन्यू इन जस्ट 5 years. ये हम नहीं बता सकते, कहीं पे दिया भी नहीं है. मिलेनियल्स आर द ओनली एज ग्रुप द OTT प्लेटफॉर्म शुड फोकस अपॉन. नहीं, ये तो एब्सर्ड है. The author will not agree with which of the given options. The ones born between 1985 and 2002 are easily attracted to Netflix. ठीक है, ये हो सकता है. आपको वो देखना है क्या नहीं है, ठीक है, क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. OTT प्लेटफॉर्म सरपास द मूवीज 2 years ago, ये तो सच है. Netflix popularity is solely due to Western culture in India. ये गलत है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था पता है? उन्होंने बोला था कि नेटफ्लिक्स की पॉपुलैरिटी जो है, ठीक है, इट एंटर्ड इंडिया मेनली ड्यू टू. मेनली का मतलब क्या है कि 1 2 3 4 ऑप्शंस है, उसमें से थर्ड ऑप्शन मेन है, पर ये दोनों ऑप्शन भी तो है ना. वैसे ही यहाँ पे सोनली का मतलब क्या है कि सिर्फ एक ही ऑप्शन है. सो वो गलत है. मेनली है मतलब बाकी के भी रीजंस है, मेन रीजन ये है. सो सी इज आर आंसर. द पैसेज हैज़ मोस्ट लाइकली अपीयर्ड इन. अभी ये पैसेज देख के आपको क्या लगता है, ये पैसेज कहाँ पे आया रहेगा? ब्रांड बिल्डिंग मैगजीन. कौन सा ब्रांड बिल्ड कर रहा है? किसी भी ब्रांड की यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नहीं हो रही है.
कंप्यूटर के बारे में तो कुछ नहीं था. रिसर्च हो सकता है और न्यूज़पेपर पब्लिकेशन हो सकती है, लेकिन यहाँ पे बाद में ऑथर ने बोला है कि मुझे ऐसे लगता है. रिसर्च वाले लोग सिर्फ फैक्ट देते हैं, मुझे क्या लगता है ये नहीं बोलते, इसीलिए ये न्यूज़ पब्लिकेशन है. ओहो हो, अनदर पैसेज. Historians have long argued about what gave rise to the Age of Enlightenment in the 18th century. Some have hypothesized that it was at least in some part due to the rise of coffee houses. That seems a bit far fetched until we look at it more closely. Very quickly after the rise of coffee houses, there emerged a distinction between them and the pubs. Rumors of the health benefits of coffee spread, and it was soon agreed that coffee houses spurred more sober, rational thought and sharper political discussion, whereas establishments catered to rowdiness and intoxication. A coffee house was a place to be exposed to new ideas, current events, and discussion of how life might be lived. Until this time, a forum to discuss new ideas had not existed. Now, merchants, traders, writers, philosophers, and politicians had such a forum. Gradually, they found other ways of meeting, and coffee houses began to wane in popularity until the Starbucks generation brought them back 25 years ago. Some historians claim that coffee replaced beer shop, which was what most Europeans and Americans had subsisted on, with a drug that now kept them awake and allowed them to converse well into the night in a far more lucid way. This, they feel, was what gave rise to both the French and American revolutions. Other historians say that a higher level of leisure had created an environment in which people could afford the time to meet in coffee houses to discuss the latest farming techniques, business trends, and of course, politics. King Charles of England actually attempted a ban on coffee houses in 1675, fearing that they might result in his loss of power or even decapitation. However, his ministers loved their coffee so much that they overruled the ban. So, did coffee houses give rise to these meetings, or was it the level of leisure that had suddenly come about? It does seem logical that people with a clear head would be more capable of holding on to an idea for a longer period of time and would have the mental acuity to grasp what each other was saying. So perhaps it was a happy confluence of increased leisure and a switch to coffee that enabled so many of those wonderful thinkers to hammer out their ideas for a new nation, and those with a scientific bent to come up with so many of the major breakthroughs during the 18th century in Europe and America. Some of our founding fathers may have sat in their very coffee houses discussing the future of the colonies or how government should be, noting the pitfalls or failures of the monarchies of England and France. Perhaps a seemingly harmless thing like the emergence of coffee houses actually influenced our future. Interestingly, almost as quickly as they sprang up, coffee houses began to decline. They had served their purpose and were no longer needed as meeting places for political or critics and debate. What a beautiful passage, guys. So, if coffee was not the largest influence of the age enlightenment, what does the author suggest might have been the influence? तो यहाँ पे author क्या बोल रहे हैं? The revolutionary ideas that were everywhere, नहीं. The King's proclamation, नहीं. उसके जगह क्या होता? The rise in leisure time that Europeans had suddenly got. Yes. ठीक है, उन्होंने ये बोला कि शायद कॉफ़ी की वजह से नहीं हो रहा है, लोगों को बहुत टाइम मिल गया है शायद. Which of the following most closely suggests the author's attitude about the influence of coffee house on the age of enlightenment? They definitely were major factors. नहीं, उसने शायद explain किया. They were definitely an improvement over pub. देखो, उसने ना कहीं पे भी definite नहीं बोला है. They were a possible connection, but perhaps not the only one. They were the more conducive to conversation. No. C is the right answer. Which of the following does the author not do concerning coffee? Indicate that it sharpens mind. हाँ, intellectuals बैठते थे. Mention that it helps people stay up late. Yes, उसने बोला drug.
कॉन्ट्रास्ट इट विद बियर शॉप, येस रिप्लेसमेंट, डेमोन्स्ट्रेट वाई इट इज हेल्दी, नहीं ये कहीं पे भी नहीं बोला, सो दिस इज आवर आंसर. वाई डज द ऑथर मेंशन द प्रोक्लेमेशन ऑफ किंग चार्ल्स? टू शो हाउ द किंग व बुलीज, नहीं, दैट टू सजेस्ट हाउ थिंग्स गॉट बैक देन, हाँ, to demonstrate how strongly coffee houses had become part of society, to indicate that the king saw coffee house as a threat to his power. ये सच है, इसलिए तो उन्होंने प्रोक्लेमेशन निकाला था. Which of the following best expresses the author's purpose in writing this passage? To show how the political thinking behind two revolutions, नहीं ये तो सिर्फ स्टेट किया. देखो कुछ बात से स्टेट कर दी ना तो वो नहीं होता. Whatever is the main important thing to explain how the age of enlightenment came about, नहीं. To discuss a possible connection between coffee house, possibility, देखो पूरा ऑथर ना पॉसिबिलिटी पे ही बात कर रहा है. तो एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी ना जो एक्चुअल आपको 100% नहीं गारंटी है, ठीक है, वहाँ पे वो 100% नहीं बोल रहा है, तो उसको डेफिनेट वगैरह ऐसे बड़े बड़े शब्द नहीं देने के, नंबर 1. एंड सेकेंडली छोटे छोटे जो चीज़ें दी है ना पैसेज में, दे आर नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. वो बस स्टेट किया है, वो बस पैसेज में यूज़ किया है, लेकिन दैट डजंट मेक द पैसेज अबाउट इट. सो दैट वॉज इट गाइज. आई होप आई हैव बीन एबल टू टेल यू कि अप्रोच कैसे होना चाहिए आपका. अगर आपको ये समझ में आया तो मेक श्योर दैट यू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर टेस्ट. And if you are preparing for testnet, then you can contact us. We provide live classes, classroom coaching, books, mock test, and a lot more to prepare you for your exams. So you can contact us on 8828581455 for online and live coaching. And we also have our centers in Mumbai at Borivali, Vasai and Dadar. So you can also contact us on these numbers and visit our centers. For more information, you can log into our website. And yes, make sure you follow us on our social media handles, like and share our content on Facebook, follow us on Instagram and join our Telegram channel. And yes, subscribe to our channel. All the links are in the description below guys. आप सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हमने और बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए हैं जो आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेंगे. सो वो वीडियोस भी मैं लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो वो वीडियोस भी आप जाके देख लेना. एंड यस, मेक श्योर दैट यू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स गाइज, ताकि उन्हें भी हम हेल्प कर पाए. And that is all from our side. We'll see you in the next video.